Hello बच्चों, let's read a given question. The question says Huygen was the first scientist who proposed the idea of wave theory of light. He said that the light propagates in form of wavefront. A wavefront is an imaginary surface at every point of which waves are in the same phase. For example, the wavefront of a point source is a light is a collection of concentric spheres which have center at the origin. W1 is a wavefront, W2 is another wavefront. The radius of wavefront at time t is ct. In this case, where c is the speed of light, the direction of propagation of light is perpendicular to the surface of the wavefront. The wavefronts are plane wavefronts in case of parallel beam of light. Huygen also said that every point of the wavefront acts as a source of secondary wavelets. The tangent drawn to all secondary wavelets at a time is the new wavefront at that time. The wavelets are to be considered only in the forward direction, that is the direction of propagation of light, and not in the reverse direction. If a wavefront W1 at time t1 is given, then to draw the wavefront at time t plus delta t, take some points on the wavefront W1 and draw spheres of radius c delta t. They are called secondary wavelets. Draw a surface W2 which is tangential to all these wavelets. W2 is the wavefront at time t plus delta t. Huygen proved the law of reflection and refraction using concept of wavefront. Wavefront incident on a interface between the media are shown in figure. The refracted wavefront will be as shown. So we have been given with 4 options and we have to check which of the options given is correct. So A, B, C, D हमें 4 options given है. We need to understand about the concept of key concept, that is law of refraction using wavefront. First we will derive it and then we will directly use the concept over here. So let's suppose we have a surface, plane surface है यहाँ पे के we have plane wavefront जो कि इस पे incident हो रहा है, and this wavefront is let's say AB and it is having 2 rays we will be considering in this wavefront, that is P and Q. ठीक है, फर्स्ट वाला रे जब इंसिडेंट होगा इस पे तो इट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सरफेस, राइट, कुछ इस तरीके से. सेकंड भी रिफ्रैक्ट होगा कुछ इस तरीके से. एंड नाउ वी कैन सी, अब यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग के जो ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1 सो दैट लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. सो ये तो चीज़ हमें पता है. एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा सरफेस के ऊपर, सो वी कैन सी लेट्स से ये पॉइंट हमारा बी डैश हो जाएगा एंड दिस पॉइंट नाउ विल बिकम ए डैश. ठीक, जब ये इंसिडेंट होगा तो हम देख सकते हैं पहले रे पी इंसिडेंट होगी फिर क्यू इंसिडेंट होगी. ठीक है, अब इंसिडेंट होने के बाद वी कैन सी कि दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है, इफ दिस इज आर, ये 90 माइनस आर, सो दिस इज अगेन विल बी आर. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जो सिचुएशन हमें मिलेगी, ये जो हमें मिला है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से ये आर को हम यहाँ लिख देते हैं. ये पॉइंट है हमारा सी, ये पॉइंट है हमारा डी. ठीक, तो फ्रॉम द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस, अब उसमें अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन राइट साइन आई की अगर हम वैल्यू लिखें तो ये आई हो जाएगा. फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ साइन आई एज साइन आई क्या लिखा जा सकता है, बी डैश डी अपॉन ए डैश डी. ठीक है, सिमिलरली साइन आर को क्या लिखा जा सकता है फिगर से, साइन आर कैन बी रिटन एज ए डैश सी अपॉन ए डैश डी. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी इफ वी टेक द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर, sin I upon sin r, which is also equals to by Snell's law we can write this as to be mu2 by mu1 will be equals to sin I की वैल्यू क्या मिली हमें, b डैश डी अपॉन इसकी मिली है a डैश सी. ये कैंसिल हो गया a डैश डी तो दोनों तरफ से. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. एंड अगर हम बात करें b डैश डी की, सो लेट्स से b डैश से d तक आने में उसको टाइम लगा t, सो सेम टाइम उसको a डैश से c पे आने में लगेगा इन द अदर मीडियम. ठीक है, so what we can write is b dash d को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम. let's suppose c1 is the speed in the medium mu1, so ये हो गया c1 into t, distance speed into time,
एंड नीचे हो जाएगा C2, सेकेंड मीडियम में स्पीड है C2 इंटू टी, सो यहाँ से आ जाएगा C1/C2. सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर द केस. नाउ वी कैन यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. ठीक है, हमें दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर साइन आई अपॉन साइन आर, फ्रॉम फिगर गिवन इन द इक्वेशन, राइट. साइन आई अपॉन साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1. μ2 हमें √2 गिवन है और μ1 हमें गिवन है 1. ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको फर्दर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से आई भी हमें गिवन है, अगर देखा जाए तो 45 डिग्री गिवन है आई. सो वी कैन राइट द वैल्यू एज साइन 45 विल बी 1/√2. तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर विल बी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन √2, राइट. साइन आई इज 1/√2 क्योंकि आई 45 गिवन है डिग्री और ये ऑलरेडी √2 है, सो ये 1/2 हो जाएगा. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. ठीक है ना, तो साइन आर इज 1/2, तो आर की वैल्यू 30 डिग्री बिकॉज साइन 30 इज हाफ. तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ये एंगल इस तरीके से आर यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस इज व्हाट द 30 डिग्री वी आर गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.